سوال یہ ہے، ہم نے ملک کا کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے قانون بنانا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ان میں ایسے آ گئے ہیں جو کہ ڈیفائن نہیں ہو سکتے اس ڈیفینیشن میں ٹیررسٹ کی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون ایسا ہو جس سے ٹیررزم کو بھی ڈیفائن کیا جائے، اور یہ ایک ڈیفینیشن بن جائے گی ٹیررزم کی۔ جہاں تک پولیٹیکل فورسز کا سوال ہے، اس میں آپ نکال کے دیکھ لیں کہ جو رینجرز کا قانون بنایا گیا ہے سندھ کے لیے، یا ان کو جو رائٹس دیے گئے ہیں سندھ میں، وہ دوسرے پروونسز سے کچھ مختلف ہیں۔ آپ کے پاس خود اس کی موجود ہیں کاپیاں، ہم کیا کہیں، آپ کچھ سمجھنے والے ہیں۔ شاکر سولنگی۔ میرا سوال اسی پہ یہ ہے کہ یہ جو نیا مسودہ حکومت نے دیا ہے، اس میں مذہب اور فکر کی بنیاد پر جو دہشت گردی کے الفاظ ہیں وہ نکال دیے ہیں، پچھلے مسودے میں تھے، تو اس پہ پیپلز پارٹی کے ریزرویشن پہ تھے، تو آپ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ یہ جو ایشو ہے، جو پہلے آئین کے اندر جو ترمیم کی گئی تھی، فاروق نائک صاحب بتا دیں گے، وہی چیز ہم نے پروپوز کی ہے۔ نہیں، وہ مذہبی دہشت گردی پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مذہبی دہشت گردی کا اس میں شامل ہے نا، شامل ہے اس میں اپنا یہ تو ہمارے پوائنٹ سے اس کا ان کی جو توازیز ہیں ان کے ساتھ۔ وقار ستی۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم ستی صاحب۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا کہ کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ دوسری دفعہ ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں کہ یہ سارا قانون سیاستدانوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا؟ بیٹا اس کی تو کوئی گارنٹی کوئی دے نہیں سکتا، اس لیے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کیا کہا گیا تھا کہ جیٹ بلیک، اور جیٹ بلیک میں آ گیا ڈاکٹر عاصم، تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں۔ سجاد ترین اس کے بعد آپ ذرا ہولڈ آن، سجاد ترین لیڈی اینڈ دین یو۔ جو انتظامات کر رہے تھے وہ نہیں ہو سکے، اب آپ بنارس میں انتظام نہیں ہوں گے تو قوم کو آپ رحم و کرم تو چھوڑ رہے ہیں، فوج جس کو مرضی ہے وہ اٹھا دیں۔ اسی لیے تو ہم نے 1 سال کا عرصہ رکھا ہے، اس کو ہم جج کریں گے، حکومت کو ہم فورس کریں گے کہ وہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام میں بھی چلے، فنڈز بھی پرووائڈ کرے پروونسز کو، جوڈیشری کو، تاکہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو سب کو دیکھیں کہ اس کے کیا ریزلٹس ہوئے ہیں اور کیوں اس میں کمزوریاں ہیں۔ میرے نظر میں کمزوریاں اس لیے ہوئی ہیں کہ حکومت وقت سنجیدہ نہیں ہے اور ان نے ان کو فنڈز پرووائڈ نہیں کیے۔ پنجاب میں اب جو آپریشن ہو رہا ہے رینجرز کا، پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ وہاں پر سیف ہیونز ہیں اور بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، لیکن ان کے خلاف پنجاب گورنمنٹ سیمپٹیز رکھتی ہے اور آپریشن نہیں کر رہی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا تفریق کی آپریشن کر رہے ہیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹ؟ میڈم میرا خیال ہے کہ آج بات صرف اسی پر کریں، قانون میں کر لی۔ بیٹا آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے بھائی کو جواب دیا تھا کہ اگر آپ نوٹیفیکیشن نکال لیں جو رینجرز کا ہوا ہے، اس میں اور سندھ کے نوٹیفیکیشن میں فرق ہے، وہ نیٹ پہ ہے، آپ نکال کے خود پڑھ لیں۔ بیٹھلا شاہد، بیٹھلا کھڑے ہو جاؤ نا سوال کر کے پھر بیٹھ جاؤ، ذرا ہولڈ آن شاہد، بیٹھلا۔ پیپلز پارٹی کے 2 بڑے برانڈ ہیں، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری۔ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کو آصف علی زرداری کی کریمنلائزیشن کے طور پر چوز کیا گیا، لانچ کیا گیا، اور مین برانچ کے طور پر چوز کیا گیا۔ اچھا بیٹا، پہلی بات تو یہ سوال اس موقع کا نہیں ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی سمبل ہے۔ برانڈ کوئی ہم چائے بیچ رہے ہیں۔ سی آر شمسی ہولڈ آن یار، ون بائی ون سی آر شمسی۔ سب سے پہلے تو ویلکم میرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نے
मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जो सजेशन दी है APC भी बुलाई, लेकिन इस दहशत गर्दी का एक पाकिस्तान का ताल्लुक जुड़ा हुआ है, बाहर जो इमेज बना हुआ है पाकिस्तान का, और कहा जा रहा है कि कुछ सरहदों से भी मुदाखलत होती है, और वो दुनिया में जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो भी एक सूदमंद साबित नहीं हो रही है। आप साबिक सदर की हैसियत से क्या तजवीज़ करेंगे कि पाकिस्तान का जो तशक्कुस बाहर खराब हो रहा है और जो मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं, इनको क्या तजवीज़ करेंगे कि अपनी खारजा पॉलिसी के बुनियादी ढांचे में क्या तब्दीलियाँ लाई जाए? सर, पहले तो शमसी साहब, आपको पता है कि आप भी सियासत को 40 साल से देख रहे हैं, मैं भी 40 साल से आपके साथ जवा हुआ हूँ सियासत में ही देखते हुए। मैंने तो ऐसी हुकूमत कभी नहीं देखी जिसका फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो, आज तक मैंने नहीं सुना। फिर पता नहीं मियाँ साहब को शायद खौफ है कि अगर पंजाब से कोई दूसरा बंदा फॉरेन मिनिस्टर बन गया तो वो पॉपुलर हो जाएगा या उसकी कोई पोजीशन बन जाएगी, वरना कोई रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर ना हो। और फॉरेन मिनिस्टर की ये पोजीशन है कि आप समझें कि दैट इज़ द फ्लैगशिप, वही बात करता है, वही इंटरेक्ट करता है। इजाज भाई, इतने तो नाराज मत हुआ करो। नाराज नहीं, लेकिन आपने ये फरमाया कि आप फौजी अदालतों की हिमायत नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने APC के बाद बाहर आकर ये कहा कि पीपल्स पार्टी अपोज टू द मिलिट्री कोर्ट्स। ये तजाद क्यों है? और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत आपकी तजावीज़ नहीं मानती तो फिर आप क्या सेनेट में हुकूमती जो आएगी तरमीम उसको ब्लॉक करेंगे? एजाज, ये मैं बता दूं कि चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि हम उसूली तौर पर जमहूरी निज़ाम में फ़ौजी अदालतों के मुखालिफ हैं, लेकिन अगर ये नागुज़ीर हो तो फिर हमारी तजावीज़ है, जो तजावीज़ सवाल का जवाब दे दें कि अगर आपकी तजवीज़ नहीं तस्लीम करती दो सवाल क्यों ले? अगेन वो आपकी सवाल जो है ना इफ एंड बट्स पे जब होगा ऐसा तो उसका रिएक्शन आप देखिए। शफकत फ्रॉम नेशन, शफकत अली। मैं ये पूछना चाह रहा था, डायरेक्टली सॉरी नहीं है मेरा क्वेश्चन, मंसूर, काफी ऐसे बातचीत हो रही है आपके बाई इलेक्शन के कब होगा, तो उसके बारे में काफी राब्ता करता है आपके लीडर जो भी पार्टी के हैं। चेयरमैन साहब कह चुके हैं इसमें, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इस पे जवाब दे चुके हैं। अहमद मंसूर। एक्सप्रेस न्यूज से ताल्लुक है, अहमद मंसूर नाम है। अच्छा, आपका हुई थी पीएम हाउस में, ये तो काफी देर से दाखिला ने अदालत आपके लिए तारीफ के लिए लिखी कि आपका किरदार है फौजी अदालतों के हवाले से और कंसेंसस के हवाले से। तो अब फिर जब ये मामला आया तो हुकूमत अब उस तरह एक्टिव नजर नहीं आ रही, प्रोएक्टिव। आपके साथ क्या रास्ते होने किए या किस तरह किए कि आपको संजीदगी में नजर आ रही है? अगर नहीं तो वो भी अगर नहीं चाह रहे और आपकी तरफ से तजवीज़ ऐसी है कि फौजी अदालतें कहीं आपस में कोई इसमें मुताबिकत है पीपल्स पार्टी और नून लीग की पॉलिसी में? मैं तो समझता हूँ कि नून लीग जो है वो सीरियस है ही नहीं। पहले भी हम गए, हमने जाके सब दोस्तों को गारंटर बन के और हमने ये कानून पास कराया। उस वक्त भी दोस्त काफ़ी पॉलिटिकल फोर्सेस तैयार नहीं थी, मगर मैंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल यूज़ किया, दोस्तों की मिन्नत समाजत की और उनसे मैंने ये कानून पास करवाया। अभी तो हुकूमत को ने मेरा ख्याल है इस पे उन्हें बॉदर ही नहीं किया है कि मुझसे कांटेक्ट करें। तो अगर उन्हें परवाह नहीं तो मुझे क्यों होगी? होल्ड ऑन, इनका सवाल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो फौजी हल है हमारा, ऑपरेशन दरमियान भी हुआ, फौजी अदालतें भी बनी, अभी आप तजावीज़ लेकर आए फौजी अदालतों के हवाले से, लेकिन जो सिविलियन का काम है नेशनल एक्शन प्लान वाला, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके हवाले से आपके पास क्या तजावीज़ है? आपकी पार्टी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत पर दबाव क्यों नहीं डाल रही? हम डाल रहे हैं, इसलिए तो आपसे बात कर रहे हैं और हम कह ये रहे हैं कि ये हुकूमत का एक फेलियर है जिसमें हुकूमत ने बजट नहीं दिया है। मुल्तान रोड जो है वो 3 दफ़ा टूटती है लाहौर में, 17 बिलियन में बनती है और 3 दफ़ा टूटती है। उसके लिए पैसा है, मगर नेशनल एक्शन प्लान जो सिक्योरिटी प्लान है, जो आपके बच्चों का फ्यूचर है, जो प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान को स्टेम कर रहा है। आप सोचें कि आज कराची जो है वो सबसे बड़ा पख्तून शहर है। ये बेचारे पख्तून जो हैं वो KPK से, पिशावर से जलावतन होके वहाँ जाके बैठे हैं मजबूरन। दे आर इमिग्रेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ रह नहीं सकते, इकोनॉमिकली
सर्वाइव नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ आए हुए हैं। जब भी ईद होती है तो आप देखें वो एक ज़माने में बसों पे आए करते थे और कहते थे हम मुल्क जाती है, तो अब भी उनको अगर मौका मिले और अमन आ जाए केपीके में तो वो दोबारा वापस आके अपना बिजनेस केपीके में यंग मैन एट द बैक, यंग मैन वाज अप। सर आपने सुना नहीं, इन भाई ने ये क्वेश्चन किया है एंड आई हैव आंसर्ड इट। होल्ड ऑन, ऑलरेडी मुखालफत की है पहले भी कि हुकूमत ने पूरा अमल दरामद नहीं किया इस पे, तो पीपल पार्टी अगर अभी 1 साल की तोसी और भी दे रही है तो इस हवाले से वो क्यों दे रही है? पहले भी हुकूमत तो उसमें नाकाम हो चुकी है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए ना, हमारा काम अपनी फौजों को, अपनी फोर्सेस को डिसहार्टन नहीं करना है, अपने शहीदों का हमने खिराज इनसे लेना है। ये जो टेररिस्ट हैं इनका मुकाबला करना है। अगर ये नेशनल एक्शन प्लान फेल हो गया है तो हमने दोबारा उसको मजबूत करके लाना है और आप दोस्तों की मदद से इन पे दबाव डालना है कि उसको चला सके। सर सुहेल खान दुनिया भाई साहब ये बताएं कि ये जो अफगानियों की यहाँ पाकिस्तान में स्टे में मुसलसल तारीख में तोसी की जा रही है, इस पर पीपल्स पार्टी अभी तक खामोश है। और दूसरा मेरा सवाल है कि IDP का जो मामला आपने बहुत हद तक हल कर लिया था, अभी वो पूरी तरह गए नहीं है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? कहा यह जाता है कि दहशतगर्दी में ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं। सर हमने तो अपने ज़माने में जो स्वात ऑपरेशन किया या फिर आज़ाद जो जिसे कहते हैं कि आप ट्राइबल एरियाज हैं उनमें ऑपरेशन किया, उनके जितने भी IDPs थे उनको हमने वापस भेजा। आपने देखा कि स्वात वालों को हमने वापस भेजा, वो 1 मिलियन लोग थे, कम नहीं थे, और वो वापस पहुंच के अपने घरों में मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। अगर ये हुकूमत होल्ड ऑन, नो लास्ट 3 क्वेश्चन आप करें, आप सॉल्व करें, होल्ड ऑन। ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुद्दत 1 साल इसलिए तजवीज़ की है कि आइंदा इलेक्शन जब हो तो फौजी अदालतों का वजूद ना हो? नहीं, हमारा मकसद है कि ताकि हुकूमत पे जोर डाला जा सके, ताकि वो नेशनल एक्शन प्लान के लिए जो बजट है, जो पैसे हैं, जो कि अब इनको याद आ रहा है कि जजों के लिए गाड़ियां होनी चाहिए, बम प्रूफ गाड़ियां होनी चाहिए, ये तो पहले दिन सोचना चाहिए ना कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो सफर का सामान साथ होना चाहिए। सर ये बताएं कि सूबा पंजाब भी आपके पास नहीं है, सूबा बलूचिस्तान भी आपके पास नहीं है। सर आपके पास कुछ जादू का चिराग है कि आप दोबारा गवर्नमेंट अपनी बनाएंगे? सर मेरे पास पाकिस्तान है। शमसी न्यूज़ इसके बाद आप हैं। तो मेरा सवाल पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से, आप पंजाब में आपने कहा कि दोबारा पार्टी को रिवाइवल कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो कोशिशें अभी की गई थी वो हमें कम नजर आ रही हैं और अभी भी माजी की तरह जो थ्रेट है वो क्या अभी भी आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो के लिए, साथ ही साथ जो कबायली अवाम के लिए अभी रिफॉर्म्स की गई हैं और उनको वापस कौमी दायरे में लाने की हुकूमती कोशिश है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सर हमारा मकसद ये है और हमारी पोजीशन भी ये है कि इट शुड बी नॉर्मल प्रोविंस। जितने भी केपीके की हुकूमत है पहले उससे पूछा जाए, उसको कंसल्ट किया जाए, उनको साथ लिया जाए, और ये अपने तरफ से ने ड्राफ्ट दिया है जिसमें गवर्नर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए हैं और 32 जाली सीटें बना दी हैं। ये नहीं चलेगा, जो काम किया जाए वो परमानेंटली किया जाए। एंड वी आर इन दी with the opinion that there should be a province by including all of the frontier regions into KPK. Last question, Abrar, last question वो है। No, hold on, वो last question, please. आप मेरा सवाल ये है कि आपने 5 साल हुकूमत की और 5 साल में जिस तरह के लोगों को
पीपल पार्टी में शामिल करके मिनिस्ट्रियों पर बिठाया, उससे 2013 के इलेक्शन के नतीजे हमारे सामने आए, जिस तरह के पीपल पार्टी का इन फैसलों ने बेड़ा गर्क किया था। और आज एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को पीपल पार्टी में शामिल किया जा रहा है जो पीपल पार्टी के लोगों को मारते रहे हैं, कत्ल करते रहे हैं, कोड़े मरवाते रहे हैं। अपना ये इस सवाल का तो प्लीज इसका तो ताल्लुक प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं है। होल्ड ऑन, नहीं आप बेशक कर लें सवाल, लेकिन इस सवाल से ताल्लुक नहीं बनता प्लीज, इसलिए इसकी जगह पर आप सवाल कर लें तो आप पूछ लें। लेकिन प्लीज ये सवाल कर, ये लास्ट आप कर, नो प्लीज आप हो गया ये। लोगों को I didn't follow your question. देखिए बात ये इस अदालत में सेशन जज या एडिशनल सेशन जज along with मिलिट्री ऑफिसर और उनकी तकर्री मिलिट्री कोड का अंदर पहले भी हम मिलिट्री कोड्स देख चुके हैं, आपकी उम्र कम है, हमने वो कोड्स देखे जिसमें जज भी बैठता था और अफसर भी बैठता था। थैंक यू वेरी मच सर, हो गया जी। थैंक यू वेरी मच।